आपका राज आपकी खबर। नमस्कार, मैं हूं सुरेश तवानके और आप देख रहे हैं बिंदास हो। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया, नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। तेलंगाना पर जो सियासी घमासान चल रहा था वो अभी भी ठीक राज्यसभा के अंदर जारी है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया, वहां पर उनको घेरे खड़े थे वहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, ताकि तेलंगाना का विरोध कर रहे सीमांध्र के सांसद उन्हें डिस्टर्ब न कर पाए। अभी सीधा आपको प्रोसीडिंग दिखाने के लिए हम राज्यसभा लिए चलते हैं। I shall now put clause 5 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is one amendment, number 8 by Sir Derek O'Brien. Are you moving, Derek O'Brien? Number 8. Amendment not moved. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 1 by Devendra Gowda. Number 9 by Derek O'Brien. Number 16 by Sri M. Venkaiah Naidu. Now Devendra Gowda, are you moving the amendment? Not moving. Number 9 by Derek O'Brien. Are you moving the amendment, Derek O'Brien? Derek O'Brien, are you moving amendment? No. Number 16 by Venkaiah Naidu. Sri Venkaiah Naidu, are you moving? Yes, Yeah. sir. Yeah. Sir, please. Clarification. Sir, I would like the government to clarify on 16. Mr. Ramesh, sir, Home Minister. We are supporting, please try to understand, yeah. Let us get the bill passed in a proper manner. Why are you hurrying through? We are cooperating and steering out of patients. These people are creating problems. The entire state is watching us. Let us do something in a peaceful manner. I am there to cooperate with you. 16, Ramesh. Sir, 16. Yeah. Moving. You are moving. I want the government to clarify. Okay. 16 is moved. What is the stand of the government? Do you accept it or not? Do you accept it or not? 16, no. Chair want to know, do you accept it or reject it? His amendment, he wants to know your reaction. No, it is explained in the speech, both of us, you see, so there is no need to accept it. So you are not accepting? Yeah. Mr. Venkaiah Naidu, government is not accepting. Now, Sir, please. What amendment, what clause, nobody is able to understand, including myself, because of this din. no, you I also have did, my amendments. you did not What explain. you are calling, I am not able to hear you, now that's the problem. You did not explain. You did not explain. Sir, he is not reading which amendment, he is not saying. I'll give you a copy of the Prime Minister's statement. Okay, you moved, eh? Yes. I am going to put it to vote. Yes. Now, I shall now put the amendment moved by Sri Venkaiah Naidu to vote. Those in favor, please say aye. तो तेलंगाना बिल पर जो संशोधन के प्रस्ताव हैं, अमेंडमेंट के जो मोशंस हैं, उस पर वोटिंग चल रही है इस वक्त राज्यसभा में। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने बात कही अपनी, उसके ठीक पहले अरुण जेटली जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात कही और रकस हंगामा आपने देखा किस तरह से सभापति की सीट के सामने तेलंगाना विरोध का जारी है। और इन सब के बीच में हर वो संभव कोशिश कर रही है सरकार कि आज ही
आज ही किसी भी तरीके से आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2013 को पास कर दिया जाए। राज्यसभा में पास होने के बाद अब यह कानून बन जाएगा और इसके लिए हेल बेंट है सरकार। हमारे साथ बहरहाल बात करने के लिए इस वक्त जयवीर शेरगिल, नेता कांग्रेस, सीधा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जयवीर, स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है अनुराग वर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका अनुराग जी। और हमारे साथ फोन लाइन पर नंद किशोर गर्ग जी जुड़ेंगे, नेता बीजेपी, और अरुण आनंद भी होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। जयवीर, आज भी हम जो देख रहे हैं राज्यसभा में, वहां पे हंगामा वैसे ही जारी है और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो, आपको इस सेशन में यह बिल किसी भी तरीके से पास करना है। मतलब कहीं ना कहीं आप स्वीकार करते हैं इस बात को कि न लोकसभा में और न राज्यसभा में किसी प्रकार का कंसेंसस आप नहीं बना पाए इतने दिनों में भी। राजेंद्र जी, कल भी मैंने आपके चैनल के जरिए कहा था, कांग्रेस पार्टी और यूपीए की कमिटमेंट है कि तेलंगाना बिल जरूर पास होगा। उसमें पॉलिटिकल रीजन कोई नहीं है। 1953 से डिमांड्स पेंडिंग है। तेलंगाना के लोगों की सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए निर्णय बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी इसमें पॉलिटिकल तौर से कोई फायदा नुकसान नहीं देख रही। एक दूसरा, जब आपने कंसेंसस की बात उठाई है, मैं इसका सबसे ज्यादा इल्जाम बीजेपी को दूंगा। वो डबल रोल कहीं प्ले कर रहे हैं इस इशू पे, ना तो अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं और हर रोज अपना मोर्चा बदल देते हैं। अमेंडमेंट्स की बात, लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा है, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, तेलंगाना बनने का क्रेडिट भी लिया। जब पूरी बात खत्म हो गई तब इन्होंने ये अमेंडमेंट का मुद्दा शुरू कर दिया। अगर ये अमेंडमेंट उठानी थी तो ये लोकसभा में क्यों नहीं उठाई? जब इन्होंने आश्वासन दिलवाया कि ये तेलंगाना की सपोर्ट करेंगे तो इनको पूरी तरह करना चाहिए था, क्योंकि ये डबल गेम खेलना चाहते हैं अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए। दोनों, जो लोग तेलंगाना के हक में हैं और तेलंगाना के हक में नहीं है, उन दोनों को ये कंफ्यूज और उलझाना और ये सेंस ऑफ कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दी है। तभी जो आज राज्यसभा में अभी भी चल रहा है, एक तरफ ये कह रहे हैं हम तेलंगाना के साथ हैं, दूसरी तरफ ये अमेंडमेंट। लोकसभा में ये बात क्यों नहीं उठाई? सुषमा जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, इनको मौके मिले, बहुत सारे अमेंडमेंट्स गए थे। दूसरा, जब पार्लियामेंट में डिसरप्शन, जयवीर, वहां भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 38 के आसपास अमेंडमेंट मोशन थे, लेकिन अपोजिशन के अमेंडमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। वहां पर जाहिर सी बात है उनके नंबर्स नहीं थे वहां पर। ये अमेंडमेंट जो खास तौर पे जो ये गवर्नर इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की अमेंडमेंट है, ये लोकसभा में जहां तक मेरे याददाश्त है ये नहीं थी। ये एक बहुत अमेंडमेंट है जो अहम है, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात उठा दी है, जिसके लिए इनको वापस लोकसभा में जाना पड़ेगा। ये बात लोकसभा में नहीं रखी गई थी। ठीक है, अनुराग की टिप्पणी ले लेते हैं। अनुराग, ये जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड सीन्स हम देख रहे हैं, अभूतपूर्व दृश्य। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और उनके ठीक बगल में कुछ लोग कांग्रेस के सांसद खड़े हुए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यही हाल हमने लोकसभा में देखा, सुशील कुमार शिंदे के साथ हो रहा था, यहां पे प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है और जबरदस्त हंगामा वहां पे जारी है। अभी भी दृश्य लगातार सीधा चल रहे हैं स्क्रीन पर। अनुराग, ये क्या समझा जाए? मुझे लगता नहीं कि शायद देश के इतिहास में से पहले कभी किसी और कानून को लेकर इतना हंगामा हुआ होगा। देखिए, पिछले 3-4 दिनों में जो भारत के लोकतंत्र ने जो है देखा है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की जो है विधानसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और लोकसभा और राज्यसभा हो, जो चीज देखने को मिली है वो बहुत ही, उसने देश को, जो स्पेशली जो सेंसिटिव लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, जो देश से थोड़ा सा प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत ही दुख का विषय है जो भी हुआ है। हमने क्या इन लोगों को चुन के भेजा था? आप वेंकैया नायडू जो लगातार बोल रहे हैं कि वहां कोई डिस्कशन तो हो ही नहीं रहा, वह बात तो हो ही नहीं पा रही है, बल्कि इस पे क्या डिस्कशन क्या हो रहा है, जब वहां पे शोर इतना हो रहा है, मतलब शोर शराबे में बिना कोई बात, कोई डिस्कशन हुए बिल पास हो रहे हैं, कोई किसी मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रही है, तो वहां पे हमने क्या ये करने के लिए उनको चुन के भेजा था? एक ये बहुत ही इसके लिए जिम्मेदार शायद हम भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि हम ही ने तो चुन के उन्हें भेजा है। आज जो वो हो रहा है, चुन के तो हम ही ने भेजा है उनको ना, तभी तो ये हो रहा है। लेकिन जो ये हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म देश की अर्थव्यवस्था, देश की छवि के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें स्पेशली बड़ी पार्टियों का रोल है, वो बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस और बीजेपी को मिलके
कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम इवॉल्व करने पड़ेंगे कि कम से कम डिस्कशन तो हो सके। खासकर अगर आप देखेंगे तो रीजनल पार्टी का रोल इन सब जगहों पे बड़ा ही डिफरेंट होता है, क्योंकि एक बार बीच में एक बार ये भी हुआ था कि रीजनल पार्टीज के जो नुमाइंदे होते हैं उनको अपने क्षेत्र में जो कैमरा वहां चल रहा होता है उसकी जो विजिबिलिटी होती है उसमें दिखने के लिए कि देखो हमारे क्षेत्र का एमपी एमएलए कितना एक्टिव है पार्लियामेंट में या विधानसभा में, उसके लिए ये जो है काफी हद तक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो जी, इस चीज को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है कि ये जो हमारे देश की छवि है और जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उस पर डिस्कशन होना चाहिए। वहां पे डिस्कशन होने के लिए उस पर वैलिड इनवैलिड पॉइंट्स को, अब तेलंगाना बिल की अगर आप अच्छाइयों और बुराइयों की बात करें तो वो तो ना पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है ना कहीं वहां पे लोग बात कर रहे हैं, वो जो आ रही है अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से आ रही है। अदरवाइज तो इसकी बिल की मेरिट और डिमेरिट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या आम आदमी को क्या इतने बड़े पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के डिस्कशन देख के क्या तेलंगाना बिल के बारे में कुछ भी अच्छाई या बुराई समझ में आई? मुझे तो नहीं लगा कुछ। यही बात जयवीर, यही बात बहुत सरल और साधारण सी बात है कि जिस तरीके का अभी एटमॉस्फेयर हम देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में टीवी की शट ऑफ होने की वजह से हमने देखा लोकसभा टीवी का प्रसारण रोक दिया गया, यहां पे हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की बात कोई नहीं सुन पाया, किसी तरह से वो बोल के जो है वो बैठ गए, ऐसा लगा कि वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। मैं अपनी बात कह दूं, वो रिकॉर्ड पे चली जाए, बाद में स्टेटमेंट जो है वो मीडिया को दे दिया जाएगा। आप ये बताइए कि क्या देश के अंदर कोई ये समझ पा रहा है कि आप एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है या अन्य दलों की बात क्या है? ये तो बिल्कुल आम आदमी को पता ही नहीं है। राजेंद्र जी, अनुराग जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि पार्लियामेंट किस तरीके से चलना चाहिए और किस तरीके से बात रखनी चाहिए, ये सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेवारी है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं। तभी ये कारण है कि जब पहले दिन आपको याद होगा कांग्रेस ने बिल पास किया, जो हमारे एमपी 17 एमपी जो बार बार शोर मचा रहे थे उनमें से कांग्रेस के भी एमपी थे, हमने उनको सस्पेंड करने की मोशन मूव की। बीजेपी ने उस सस्पेंशन को रोका ताकि माहौल और खराब हो, फिर उन्होंने अपना मोर्चा बदल लिया, अब इनको सस्पेंड कर दो। तो मैं मानता हूं कहीं ये दोनों बड़ी पार्टीज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि इन्होंने बिल्कुल सही बोला। आज तेलंगाना की पार्लियामेंट में बात हो रही है, किसी भी टीवी चैनल पे बात क्या हो रही है कि कांग्रेस की क्या पॉलिटिकल एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पर हम कहीं भूल रहे हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का 40% हिस्सा है। उनके रेवेन्यू शेयर में 50% से ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बावजूद ना उनको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का फायदा मिल रहा है, ना उनको जॉब्स में फायदा मिल रहा है, ना वो सोशली अपलिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मुद्दे कहीं पार्लियामेंट के शोरगुल में गुम हो गए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी कांग्रेस की है उतनी बीजेपी और उतनी हर रीजनल पार्टी की है। तो मैं इनकी इस बात से सहमत हूं। तभी हमने भारतीय जनता पार्टी को अपील की थी कि जो भी उनकी ऑब्जेक्शंस हैं वो पहले रखें। आज उन्होंने कंप्लीट यू टर्न करके फिर से मुद्दा उठा दिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात थी तो उनको वो मुद्दा लोकसभा में उठाना चाहिए था। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात सच है। ये बात आपने सही कही कि लोकसभा में ये बात नहीं उठाई, अभी उठा रहे हैं। श्याम जाजू, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के, इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। श्याम, आप पर यह चार्ज है और बीजेपी पर यह आरोप है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन का जो यह नया मुकदमा खड़ा किया है राज्यसभा में, यह आपने लोकसभा में क्यों नहीं किया? श्याम जाजू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगे अनुराग? देखिए, ये कहीं ना कहीं देखिए इस मामले में हालांकि मतलब क्रेडिट की लड़ाई भी कुछ कुछ हो जाती है कि अब कुछ नहीं, मुझे लगता है कि काफी ज्यादातर जो है, देखिए अगर एक लार्जर इंटरेस्ट में देखा जाए तो छोटे स्टेट हर लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन से और कंट्रोल करने के तरीके से बेटर होते हैं। तो जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको छोटे स्टेट होने का फायदा होता है। फायदा नंबर एक, उसको कंट्रोल करना इजी होता है, वो तो एक फैक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल होगा। दूसरा एंगल क्या होता है कि जो छोटे स्टेट्स होते हैं वहां कोई बहुत बड़ा नेता उभरता नहीं है। तो हाँ, अब श्याम जाजू जुड़ के जरा उनका जवाब सुन लेते हैं। श्याम जाजू, कांग्रेस और जयवीर शेरगिल जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस चर्चा में, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये संविधान संशोधन का जो ये प्रस्ताव राज्यसभा में रखा है, इसको आपने लोकसभा में क्यों नहीं रखा? अगर आपको संविधान संशोधन पर वहां कुछ नहीं कहना था तो आप यहां क्यों कह रहे हैं? बेसिक
बेसिकली लोकसभा में जिस माहौल में चर्चा हुई वह चर्चा करने का माहौल ही नहीं था। यहाँ भी कहाँ है? खुद कांग्रेस के और टीडीपी के लोग वेल में आ गए थे, कांग्रेस के मिनिस्टर वहां वेल में नारे लगा रहे थे, तो वहां चर्चा करने का, बहस करने का कोई वातावरण ही नहीं था। मीडिया के लिए वहां पूरा रिस्ट्रिक्ट किया गया था। इसलिए सब माहौल में जो हमें बातें रखनी चाहिए थी उस दिन का माहौल उसको अलाउड नहीं कर रहा था। इसलिए हमें मालूम है कि एक बार राज्यसभा में हम रख देंगे, वापस वो बिल पारित करने के लिए लोकसभा में आ जाएगा। इसलिए हमने पहले से हम ये कहते आए हैं कि हम तेलंगाना के पक्ष में है, पर सीमांध्र के लोगों के लिए भी स्पेशल पैकेज देने की आवश्यकता है। सब में कंसेंसस बना के इस प्रकार का निर्णय एग्जीक्यूट हो सकता है, पर कांग्रेस के जिस प्रकार के हड़े लपटी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है उसके कारण ये मामला पेचीदा बन गया है और उसकी कीमत पूरे आंध्र को और पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है। नहीं, वो तो खैर एक बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसकी कीमत जो है वो आंध्र प्रदेश को पूरे सामूहिक तौर पर और देश भी कहीं ना कहीं इस चपेट में आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि आप दोनों को मिलकर कोई एक रास्ता निकालना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राज्यसभा में अगर पास हो जाएगा ये अमेंडमेंट तो हम उसे वापस लोकसभा में भेज लेंगे, ये हमें पहले से पता था, तो आप श्याम जाजू साहब पहले लोकसभा में रखते तो सही, वो डिफीट तो होता। कम से कम ये तो कहने को नहीं होता कि आप लोकसभा में कोई एक बात कह रहे हैं और राज्यसभा में दूसरी बात कह रहे हैं। नहीं, हमने लोकसभा में भी कहा था कि हमारी जो हम उसको ये दे रहे, प्रस्तावना कर रहे हैं, हम अपनी जो उसको रिकमेंडेशन दे रहे, उसके साथ अगर कांग्रेस इसको मंजूर करेगी, सीमांध्र को भी न्याय मिलेगा, तो हम तेलंगाना के पक्ष में है। तो हम पहले से ये बात कहते आए हैं, हमारे कहने में और करने में कोई अंतर नहीं है। मेरा प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक अलाउ है। नहीं कर रहा था, इसलिए हमने रखा नहीं, यही बात। अनुराग कुछ कहना चाह रहे थे आप? श्याम जी, मैं अनुराग। श्याम जी, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। देखिए, आप लोग तेलंगाना के मुद्दे पे आप और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन ये कहीं क्रेडिट की लड़ाई तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से इस तरह से देश को और हमारे देश की छवि खराब हो रही है, जो लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा है, वो क्रेडिट की लड़ाई को लेके कि किसने ये बिल पास करने में ज्यादा बड़ा योगदान दिया और उसको चुनाव में उसका माइलेज लिया जा सके। क्या ये क्रेडिट छीनने की लड़ाई तो नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के बजाय ये कांग्रेस